السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس ٹرانسمیشن میں آپریشن بنیان برسوس کا آغاز پاکستان نے کیا اور بھارت کو دھول چٹا دی۔ بھارت نے جو دعوے کیے تھے، جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کے ذریعے اپنے ہی لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا تھا چند روز پہلے، پاک فضائیہ نے اب اس کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اب بھارتی میڈیا، بھارتی حکومت، بھارت کے ملٹری فورسز سب کے سب دنگ ہیں، حیران ہیں، پریشان ہیں، خاموش ہیں۔ کسی قسم کی کوئی آواز، کوئی ریزسٹنس نہیں ہو رہی۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ناصر علی خان صاحب موجود ہیں، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر ولید رسول صاحب موجود ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے بھارت نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی، جو مظلومیت کارڈ کھیلنے کی ہر دفعہ کوشش کرتا ہے، فالس فلیگ آپریشنز کے بعد دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے۔ پاکستان نے ہر دفعہ گفتگو کی، پاکستان نے ہر دفعہ ثبوت سامنے رکھے، پاکستان نے بھارت میں ہونے والی کسی بھی ایکٹیویٹی کے حوالے سے جس کا الزام وہ پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کا ثبوت مانگا۔ پاکستان نے عالمی برادری سے یہ مطالبہ کیا کہ غیر جانبدار لیکن منصفانہ تحقیقات اگر ہوتی ہیں تو پاکستان اس کا حصہ بننے کو تیار ہے، جو کہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا۔ پاکستان نے خود دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط جنگ لڑی، ایک طویل جنگ لڑی پاکستان نے، اس میں پاکستان نے دہشت گردی کو شکست دی۔ بھارت جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا، پاکستان نے بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، پاکستان نے کراچی سے لے کر پشاور تک بھارت کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کا نہ صرف خاتمہ کیا بلکہ ان کو ایکسپوز کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ثبوت رکھے۔ بھارت جو کینیڈا میں سکھوں کے قتل میں ملوث رہا، جو امریکہ میں سکھوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتا رہا، آسٹریلیا کے سینٹ میں یہ آوازیں آتی رہیں کہ بھارت کس طرح سے اپنے اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے دنیا میں دہشت گردی میں ملوث ہو رہا ہے اور دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ آج پاکستان نے بھارت کو اسی کی زبان میں لیکن زیادہ لاؤڈ آواز میں جواب دیا ہے۔ اب بھارت کو سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تو مسلح افواج اس سے بھرپور جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں آزمانا مت، ہم تیار ہیں، اور ہم نے اپنی تیاری کا ابھی بالکل چھوٹا سا اظہار کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، پاکستان اور بھارت بیانیے کی جنگ لڑنے کی کوشش کی بھارت نے، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس فرنٹ پر بھی بھارت کو مات دی۔ سفارتکاری میں بھارت نے کوشش کی کہ وہ اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بہت سارے ممالک کے، ان کے ذریعے دنیا کو اپنی صف میں شامل کر لے یا ان کی حمایت حاصل کر لے، مظلوم بن جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی سفارتکاری بھی کارگر ثابت ہوئی۔ اور اب پاکستان کا ڈیفنس، اور ڈیفنس کے بعد اب پاکستان نے جب اپنا حق استعمال کیا ہے تو بھارت کو اس کا جواب بھی مل گیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے، نہ صرف اس نے میڈیا کو ویپنائز کیا، اس نے پانی کو ویپنائز کیا، اس نے مظلوموں کے خون کو ویپنائز کیا، جس کو آپ نیریٹو کہتے ہیں۔ وہ نیریٹو بلڈنگ میں جو چنکیا کے اصول ہے، سام، دام، ڈنڈ اور بید، اس میں جو بید کا اصول ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی کہانی کوکٹ کریں اور اس کہانی پہ بلڈ اپ کریں اور اپنے آپ کو مظلوم پیش کریں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1947 میں بھی اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے کیا، اور پھر اس میں کشمیری خود شامل تھے۔ یہ 1961 میں بھی ہوا اور یہی 1971 میں ہوا۔ آپ دیکھیں 1971 میں ایگریشن ہوا پاکستان کے خلاف، 71 میں ایگریشن ہوا پاکستان کے خلاف، اور انٹرنیشنل لاء کے تحت یہاں چیپٹر 7 لاگو ہونا تھا، پاکستان ایسٹ اور ویسٹ۔ اس وقت بھی اس نے کہا میں مظلوم ہوں۔ اس میں ایک پوری کہانی بی بی سی نے کیا ہے کہ جب مفتی بہانی کو انہوں نے ٹرین کیا، اس میں ایک سکھ بریگیڈر تھا، اس کا نام تھا شابیگ سنگھ، جو ان کو ٹرینڈ کرتا تھا، اور اس کی جو پھر بعد میں مودی نے بھی کنفرمیشن لی اور ایک بک لکھی ہے سابقہ راج چیف نے، اس کا نام تھا ان اینڈنگ وارز۔ اس میں وہ ساری آپریشن کی بات کر رہے ہیں، کیسے ہم نے مظلوم بنا دیا، جو ہے وہ مظلوم بنا دیا اپنے آپ کو اور بنگالیوں کو، اور پاکستان کو ٹکڑے کیا۔ اس کی ایک کہانی ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اگر آپ انڈیا کے اس سارے چیز کو ڈیکنسٹرکٹ کریں گے، ان کے نیریٹو کو، تو اس میں آپ کو ایک کنٹیکسٹ نظر آ جائے گا، اس میں آپ کو ایک لینئر ریلیشن شپ نظر آ جائے گا، اس میں آپ کو ایک تھریڈ نظر آئے گا کہ یہ سیم چیزیں اور اسی طرح کے آج بھی ہوا تھا، جو ڈیبنک کیا پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے انٹیلیجنسیا نے، اور پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو لوگ میڈیا پہ کام، اور جو کل بریفنگ تھی اس میں بھی ایک پروف کے ساتھ باضابطہ تمام
सबूत के साथ इंटरनेशनल मीडिया के पास ब्रीफिंग आई और उसमें सारा कुछ सामने आ बिल्कुल गया सही कि है। अब अब्दुल्ला खान साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान ने तमाम शोबों में, वो बयानिए की बात हो, वो सफारतकारी की बात हो, मीडिया हो, इत्तेहाद हो, मुसल्लह अफवाज, अवाम का जोशो जज्बा, हर शोबे में भारत को मात दे दी है पाकिस्तान ने। इस वक्त मेरा सर बतौर पाकिस्तानी फख्र से बुलंद है कि हमारी अफवाज ने वो किया जिसके लिए हम उनसे हमेशा से तवक्को रखते थे। इस वक्त भारत ने सफ़े मातम बिछी हुई है और उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने एक तरह से सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। अभी अभी जो ब्रीफिंग हुई है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, उसका मैं अपने अल्फाज में तर्जमा करता हूँ कि पाकिस्तान अगर हमारी मजीद कुट नहीं लगाएगा तो फिर हम मजीद कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने सफेद झंडे लहराने की मुसलसल कोशिश की। उन्होंने आलमी सफारतकारों को मोबिलाइज किया। सऊदी वजीर खारजा के जरिए हमारे तक पैगाम पहुंचाया कि खुदा के लिए कुछ ना करें। लेकिन हमने कहा कि हम अपने मासूम बच्चों के चेहरों को क्या जवाब देंगे जो इंडिया ने यहाँ पे मसाजिद पे बमबारी करते हुए शहीद किए। हमने, हमारे DGI SPR ने, हमारे वजीर खारजा ने, हमारी हुकूमत ने कहा था कि हम जवाब देंगे। हमने वो जवाब दिया है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमने कहा था कि हमारे जवाब की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोग चाय बना रहे हैं कि मालूम हुआ है कि उनकी एक खातून पायलट जो है ना वो पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हुई है। उनके मजीद त्यारे गिर चुके हुए हैं और इस वक्त भारत अपने जख्म चाट रहा है। बुरी तरह से वो एक्सपोज हो चुका हुआ है। उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसका जो उसकी एयरफोर्स और उसका साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम भी बुरी तरह से तबाह हुआ है। हमारी जो साइबर फोर्स है उसने पूरे इंडिया में ऐसी तबाही, ऐसी भयानक तबाही मचाई है कि उनका ग्रिड सिस्टम, उनका बिजली का सिस्टम, उसकी कई अहम वेबसाइट, उनके ईमेल सर्वर, हर चीज को उड़ा के रख दिया है। और ये जो रिस्पांस है इसको इंडिया जो है ना वो समझ ही नहीं पाया, वो तवक्को भी नहीं कर रहा था कि हमारे जो कीवर्ड वॉरियर्स हैं वो क्या तबाही मचाएंगे इंडिया में। इस वक्त पूरे इंडिया में पैनिक की एक कैफियत है और सारा क्रेडिट हमारी मुसल्लह अफवाज को जाता है, हमारी कौम को जाता है। और जो हमने ऑपरेशन का नाम रखा बुनियानुम मरसूस, ये कुरान पाक की एक आयत में से है कि कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो दुश्मन के मुकाबले में सीसा पलाई दीवार की तरह होंगे। और हम दुश्मन के मुकाबले में पूरी कौम सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी हुई और पूरी कौम ये देख रही थी कि किस तरीके से खालिद चिश्ती हमने साहब ने हमें ज्वाइन किया वीडियो लिंक के जरिए। खालिद चिश्ती साहब, सर बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारे सीने फख्र से चौड़े कर दिए हैं। भारत ने अंडरमाइन किया था हमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुसल्लह अफवाज इन जनरल और पाक फिजाइया इस कौम की तवक्कुआत पर ना सिर्फ पूरी उतर रही है बल्कि उनसे बढ़कर परफॉर्म कर रही है। और ये इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है। हम पर फर्ज था, इस कौम का कर्ज था और जो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया उतार रही। जी, जो हमने तैयारी की थी, भारत ने जो इससे कबल कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह से ड्रोन्स, पहले तो उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की, लेकिन उसके बाद ड्रोन्स, मिसाइल्स और पाकिस्तान को पोक करते रहे, बार बार सफेद झंडे भी लहराते रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी मक्कारी से, अड़धर्मी से बाज नहीं आ रहे थे। अब की बार जो जवाब मिला है, इनफ है भारत के लिए? इनफ तो मैं नहीं कहता। देखिए, सिंपल जो टीचिंग होती है मिलिट्री टर्म में होती है कि आप अपनी वॉर स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं तो दुश्मन की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं और दुश्मन के रिजॉल्व या उसके हौसले को ध्यान में रखते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने मिसरीड किया और पहले तो उन्होंने ये शक किया कि पहला हमारी सलाहियत ही नहीं है हमारे अंदर, हमारे वेपन्स इतने शायद कारगर नहीं है हमारी, और उसके बाद अगर हैं तो हमारे में चलाने का हौसला नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसको अपने पर जोब है, उसको मान है कि मैं बहुत बड़ा मुल्क हूँ, किसकी जरूरत है मेरे मेरे मुकाबले में है। तो आई एम श्योर कि उन्होंने शायद मिसरीड किया सारे का सारा एंड विदाउट रियलाइजिंग कि ये, और खास तौर पे जो पिछले 2 दिन हमने बड़े एक पॉजिटिविटी गुजारे, पॉजिटिव इस सेंस में कि अपने आप को रिस्ट्रेन किया, हमने फाइट बैक नहीं किया, हमने अटैक उस तरह नहीं किया। तो शायद उन्होंने मिसकैलकुलेट ये किया कि हम शायद हमारे पास इक्विपमेंट तो अगर है तो हम है तो हमारा हौसला नहीं है। वो आज हमने साबित किया बुनियादी तौर पर, 1 नहीं 2 नहीं, मैं एयरफोर्स के भी बाहर पढ़ रहा था, ऑल फ्रंट एयर बेसिस जितने हमें थ्रेट कर सकते हैं
वो पॉसिबल उन्होंने डैमेज किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम भुज। और ये भुज वो इलाका है जो कराची समंदरी एरिया से आते हुए जब जहां से जहाज टेक ऑफ करके कराची पर हमलावर होते हैं, वहां से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने जो हमारे एयर बेसेस हमने तबाह किए हैं, उनके मैसेज ये गया है कि ना सिर्फ केवल, और सबसे बड़ी बात कर, मैं कई दिनों से आपके चैनल पर भी ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे एक्सेस है। मैं गया था कुछ अरसे पहले यही इंस्टॉलेशन देखने के लिए पाक फिजाई के, अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्री बनाता, तो मैं खुशगवार हैरत हुई जब मैंने इनकी साइबर कमांड देखी। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के बाद सिर्फ कन्वेंशनल वेपन अपनी जगह है, लेकिन दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई हुई है। ये साइबर कमांड कल के जो आज सुबह के जो सारा हमले हुए हैं, और उससे पहले उस दिन जो राफेल वाली शूटिंग डाउन हुई थी, फुल्ली इंटीग्रेटेड थी साइबर एंड एरोस्पेस कमांड पाक फिजाइया की। हमने वो हर डायमेंशन, हर वो टूल, हर प्लेटफॉर्म वो यूज किया, उस दिन भी किया और कल भी किया है, आज सुबह भी किया है, जिसमें हमने ये साबित किया है कि हम सिर्फ हार्ड किल पे नहीं जाएंगे, हम सॉफ्ट किल करेंगे, हम आपके नेटवर्क जैम कर देंगे, हम आपकी साइबर, हम आपकी जो आपकी वेबसाइट्स हैं और आपके डाटा लिंक को तोड़ेंगे, हम आपके मिलिट्री सैटेलाइट को डैमेज करेंगे। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये रिजॉल्व शो करता है किसी मुल्क का। रिजॉल्व का अंडर एस्टिमेशन किया हिंदुस्तान ने। मिलिट्री का हार्डवेयर तो उनको इंटेलिजेंस की खबरों के जरिए जाता रहता है कि हमने ये जहाज ले लिए, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। इनको डाउट था कि उनकी एक्यूरेसी, वो जैसे मैंने कहा कि जब राफेल लिए तो अब राफेल वाले रो रहे हैं कि हमारे जहाज क्यों मरवा दिए। अब जब ड्रोन चलाए और हमने एक दिन में 17 और 30-40 हमने मार दिए, तो अब वो ड्रोन वाले भी रो रहे होंगे इजरायली। 77 टोटल। थैंक यू फॉर द अपडेट। तो 77 ड्रोन जब वो सुनेंगे मारने वाले, वो तो कहते थे कि हमारा ड्रोन गिराया नहीं जा सकता जब तक वो टारगेट को हिट नहीं कर देता, वो खुद गिरता है जाके, यानी खुद मारता है जाके तो वो गिरता है, प्लान्ड ड्रॉप करते हैं हम, जैसे बॉम्ब की तरह गिरता है। तो ये तो गिराया नहीं जा सकता। हमने उनकी भी मार्केट खराब कर दी हिंदुस्तान वालों ने। तो ये मेरा ख्याल है जितना एडवेंचर करते जाएंगे, हम भी लेडर ऑफ एस्केलेशन डे वन से मैंने सब चैनल्स पे कहा कि ये लेडर ऑफ एस्केलेशन हम बढ़ाते चले जाएंगे अगर हिंदुस्तान बढ़ाएगा। हमारे पे कर्ज है। क्यों? क्योंकि हम छोटा मुल्क है, हमने सर्वाइवल के लिए लड़ना है। मैं कई दफा आपके चैनल पे कह चुका हूं कि हम कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं करते हैं। हम आपको ये नहीं करते हम कितने बेस तबाह कर देंगे, हमने कुछ गिनती नहीं करनी। हम ये भी नहीं काउंट करेंगे हमने तुम्हारे 5 जहाज तबाह किए। हाँ, हम ये सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए काउंटिंग नहीं होगी, उसके लिए अना नहीं होगी, उसके लिए ईगो नहीं होगी, उसके लिए पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, उसमें इंटरनेशनल रेलेवेंट रहने के लिए नहीं होगी, उसमें रीजनल हेजमनी बरकरार रखने के लिए हम नहीं करेंगे। हम करेंगे, शूटिंग करेंगे, जहाज भी मारेंगे, मिसाइल भी मारेंगे, बेसिस भी तबाह करेंगे, एक वजह से, अपनी आने वाली नस्लों के लिए और इस मुल्क की सोवरेनिटी के लिए। हम सबक सिखाएंगे आपको कि हमें आजाद रहने दें, क्योंकि हमें आजादी की कदर है। हमने दुनिया में देखा है जो लोग आजाद नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। आज 2025 में भी हो रहा है, एवरी डे हो रहा है कि वो किन हालात में, उनको टीवी पे देखना मुश्किल है उन बच्चों को और औरतों को, चाहिए जाए कि वहां रहना उस इलाके में और ऊपर से बॉम्ब का निशान। सही चीज़ें सब अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। एक ताज़ा तरीन डेवलप है, अपने नाजरीन को हम एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाजरीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया भारत के खिलाफ। भारत को पाकिस्तान ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका लगा है। इससे कबल आपको बताते चलें कि जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। और ये रिपोर्ट क्या है, आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने, भारतीय जंगी जुनून के बाद स्टॉक मार्केट में बेचैनी की फजा बरकरार है। 83 बिलियन का नुकसान हुआ है भारतीय स्टॉक मार्केट को। पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इकदाम के खौफ के बायस भारत की स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका लगा है। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय हुकूमत को $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। रॉयटर्स ने इस हवाले से खबर जारी की है, आलमी जरीदा है जिसने खबर जारी किया है। भारतीय जंगी जुनून में मुब्तला है। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी इकदाम के बायस भारत की स्टॉक मार्केट जहां बेचैनी की फजा बरकरार है, पाकिस्तान की जानिब से मजीद जवाबी इकदाम तवील और मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। ये भी एक बेचैनी पाई जा रही है भारत में। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब, जिसके बायस भारत की स्टॉक मार्केट को बड़ा धचका लगा है। भारतीय स्टॉक मार्केट में $83 बिलियन का नुकसान हुआ है। भारत की मार्केट जुमेरात को 5% कम हुई। भारतीय जंगी जुनून के बायस अब स्टॉक मार्केट में भी कमी और नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को। इससे कबल भारत की वजह से रफेल की इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स कम हुए थे। नासिर साहब जो बात कर रहे थे, चिश्ती साहब, पाकिस्तान के भारत ने
यहाँ पर मासूम लोगों को निशाना बनाया, हमारी बाहरी इबादतगाहों को निशाना बनाया, हमारे वाटर रिजर्वायर्स को निशाना बनाया और क्लेम कुछ और किया। जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, मुसल्लह अफवाज ने एक्यूरेसी के साथ सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये दोनों तरफ से अपना अपना बयानिया दिया जा रहा है। जहाँ तक हमारे क्लेम्स हैं वो इंटरनेशनली भी वेरीफाइड हैं, CNN पे, रॉयटर्स पे, इन एजेंसीज ने उनको वेरीफाई किया है। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने CNN पे बताया कि जी राफेल गिरे हैं। उसके अलावा जो इंडियन मीडिया है, जिसको ये मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ भी इनके साथ इख्तिलाफ होता है उनको ये बंद कर देते हैं। प्रवीण सोनी जो एक सेन आवाज़ थी उसको उन्होंने बैन कर दिया। उसका इंटरव्यू लिया करण थापर ने, उन्होंने जनाब करण थापर को भी ब्लॉक कर दिया। अब एक और साहब अपने नॉर्दर्न कमांडर को सैक कर दिया। एक प्रिंट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्दर्न कमांड क्या करे, ऊपर से आता है। द प्रिंट, उसमें जो शेखर गुप्ता साहब हैं जी, उन्होंने बाकायदा ये एडवाइस दी है, ये राय दी है इंडियन अवाम को कि आप लोग खुदा के लिए, अपने भगवान के लिए अपनी वो टीवी देखना छोड़ दें, क्योंकि इसमें इतना झूठ है। ये खुद उन्होंने उनको एडवाइस दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। बात ये है कि मोदी सरकार या जो RSS का जो बयानिया है ना जी, ये एक कॉम्प्लेक्स जैसे इन्फीरियॉरिटी, एहसास कमतरी कि हम पे सैकड़ों साल पहले मुसलमानों ने, फिर अंग्रेज़ों ने जो हुकूमत की, हमने कैसे दिखाना है कि हिंदू धर्म जो है वो कितना अजीम था। ये इसके लिए वो 5000 साल पीछे जाते हैं और तरह तरह के क्लेम करते हैं, इंक्लूडिंग कि हमने यहाँ से रॉकेट्स बनाए थे और 5000 साल पहले हम खला में भी गए थे। तो इस किस्म की चीज़ों से शुरू होती है ये चीज़। लेकिन उसके अलावा जो अफसोसनाक चीज़ है, अफसोसनाक बात यह है कि इंडिया जो अपने आप को इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर कहता है कि जी हम इस वक्त 5वें नंबर पे हैं और चंद सालों में हम 3रे नंबर पे हो जाएंगे। खुदा के लिए ये सोचो, मैं उनकी आवाम से ये बात कर रहा हूँ, वो आवाम जिसमें 260 मिलियन लोग जो हैं वो अपना गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं, वो बाकायदा जिसे कहते हैं टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं, टॉयलेट्स नहीं है उनके पास। यानी जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं है। 18 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। मुंबई शहर में 10 लाख लोग रोज फुटपाथ के ऊपर सोते हैं। 2.5 दुनिया की बड़ी बड़ी कचरा कुंडियां जो हैं वो भारत में, और वहां पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर अली खान साहब, आप स्टूडियोज में हमारे साथ रहे और बात कर रहे थे भारत के इस ओवरऑल जो भारत ने आगाज किया था। पाकिस्तान ने कहा था कि शुरू भारत करेगा लेकिन इख्तिताम हम करेंगे, फैसला हम करेंगे और फैसला कुन इख्तिताम हम करेंगे। पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है। ये जवाब कितना मौसर है उसका वाज़ेह सबूत यह है कि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद, पाकिस्तान के इस जवाब के बाद भारत में खामोशी छाई है। भारत का मीडिया खामोश है, सकता तारी है। वहां पर भारत के अपने बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो कि ये सवाल करते थे कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान उनको जवाब दे पाएगा या नहीं जवाब दे पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया को यह मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का ये जवाब मौसर, कारगर, बरवक्त, और पाकिस्तान के बयानी के साथ साथ भारत के बहुत सारे अब मीडिया पर्सनल भी ऐसे हैं जो कि अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि वो गोदी मीडिया के कहने पर वो भी इस बेरारवी का शिकार हो गए थे, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो गए थे। अब इन हालात में सही इंफॉर्मेशन हासिल करना और रिस्पॉन्सिबल होते हुए बतौर मीडिया पर्सन अपनी जिम्मेदारियां अदा करना बॉर्डर के उस पार भी कितना ज़रूरी है, ताकि जो लोग हैं, जो आम आवाम हैं, सिविलियंस हैं, उनको किसी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए मरवाया ना जाए, पैनिक क्रिएट ना किया जाए। देखें, मीडिया पे वार करना और मीडिया में मुक्के लहराना, उसका एक ही जवाब है, वो है बुनियानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार।
इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान जब बना तो बुनियादी वजह था, ना कोई पंजाबी था, ना कोई पख्तून था, ना कोई सिंधी था, सब पाकिस्तानी थे। और ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइस है कि इस वक्त सारा पाकिस्तान, आप देखें कल उन्होंने पिंडी पे ड्रोन गिराया तो सारे लोग सड़कों पे निकल आए और जश्न मनाया, वरना तो लोग भागते हैं कि एक मिसाइल हमला होता है या कोई ड्रोन हमला होता है, लोग भागते हैं, वो भांगड़ा डालते थे। ये होता है बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार। दूसरा, एजेंडा सेटिंग, फ्रेमिंग और प्राइमिंग की बुनियाद पे मीडिया पे जंग लड़ना, झूठ पे झूठ गढ़ना, इसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, इसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। जिस तरह कल पाकिस्तान ने प्रूफ के साथ कहा कि हमारे पास सिग्नेचर्स मौजूद है, कहाँ से कौन सा मिसाइल किधर गया, हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली प्रूफ के साथ मौजूद है। तो जब आपने इस तरह का बयानिया बिल्डअप करना है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं हो, तो उसका यही हशर होना था। बिल्कुल ये, और ये हशर हुआ है, और ये हशर करने में भारत का अपना हाथ, गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत इसमें बराबर के शरीक हैं। एयर कमोडोर साहब, पाकिस्तान की साइबर विंग का जिसका जिक्र आपने किया, उसने अपनी सुपरमेसी शो की है, एक्यूरेसी शो की है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज है उसका मुजाहरा किया है। आपके ख्याल में अब मामला डीएस्केलेशन की जानिब जाएंगे या भारत इसके बाद भी कोई मजीद जारियत करेगा, बाज नहीं आएगा? देखिए, डीएस्केलेशन की तरफ हिंदुस्तान ने जाना ही उस वक्त है जब कोई ये अश्योर हो जाए कि उसको और एट्रिशन ज्यादा मिलेगी इसके ऊपर। सीरीज में आप नोट करें कि आप पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान का नुकसान हो रहा था, लेकिन वो बड़ा मुल्क है, बड़ी मिलिट्री है, उसके ऊपर प्रेशर बहुत है उसके अवाम का, तो वो बहुत ज्यादा होपफुल था कि हम पाकिस्तान को बुली करके किसी अपने पॉजिटिव एंड पे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लोज करेंगे सारे पैकेज। पहले उन्होंने राफेल भेजे जो जैम किए, जो डाउन कर दिया, उनकी अवेयरनेस करके उनको फोर्स लैंड करना पड़ा। फिर उन्हें 72 जहाज भेजे जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट भेजे जो हिंदुस्तान, 1000 जहाजों में से उन्होंने जो बेस्ट 72 चुने, उसमें सारा राफेल का फ्लीट उड़ रहा था। अब ये अगली उनको खुशफहमी थी कि अब हम एयरफोर्स में कुछ नुकसान कर गुजरे इनका, तो फिर हम लोगों को कोई तसल्ली कराएंगे कि हमने देखो अच्छे नोट में बदला ले लिया। अब ये 72 जहाज तो नहीं हमला आवर हो रहे थे पाकिस्तान पर, उसमें से चंद सिलेक्टिव जहाजों ने स्टैंड ऑफ वेपन मारा है, और बाकी 50 और 60 के करीब जहाज वो थे जिन्होंने शूटर के तौर पे एक्ट करना था। ये नहीं पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज, फाइटर जहाज एयरबोर्न हो तो वो उसको तबाह करें ताकि वो खुदा न खास्ता तबाह हो जाए, तो फिर वो सेलिब्रेट करें कि हमने बदला ले लिया। पाक फिजाइया के सल्यूट है नौजवान फाइटर पायलट्स को और पूरी टीम को, जिन्होंने ना सिर्फ उनके 1 2 3 राफेल नहीं गिराए बल्कि दूसरे जहाज भी गिराए। उनके जो 72 जहाज हवा में आए थे उनमें से 67 जहाज वापस गए और 5 मलबे की हालत में जमीन पर गए। तो और सबसे ज्यादा उतना ही मैं क्रेडिट सारे चैनल्स पर देना चाह रहा हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ जितना इन्होंने उनको जहाजों को मार करके जितनी मैं इनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, उतना ट्रिब्यूट ही इनको खुद बाहिफाजत अपने फाइटर जहाजों को बखरियत लैंड कराने का भी देना चाहता हूँ, क्योंकि 70 जहाजों से बच निकलना, उनके 5 मार के, ये बहुत बड़ा काम। एक बात तो ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब उन्होंने ये देखा कि जहाजों से तो शर्मिंदगी हुई, कौम हमारे और पीछे पड़ गई है, ये क्या किया तुमने, और शर्मिंदा करा दिया, तो फिर उन्होंने ड्रोन का 2 दिन मुजाहरा किया। ड्रोन की चीज सस्ता चीज है, अब इसका मलबा भी नहीं नजर आता कहीं, राफेल कंपनी वालों को भी नहीं पता लगेगा, इजेक्शन सीट वालों को भी नहीं पता लगेगा, तो ये आप राफेल भेजते हैं। और दुश्मन पर लगा जाकर या नहीं लगा वो भी उन्होंने जजमेंट देनी थी, क्योंकि उसका तो निशानी कोई नहीं होती। वो उस दौरान मुझे लगता है रहे थे जी, राफेल से होगा। और मुझे ये लगा कि ये उन्होंने ये जो 2 दिन हमारे पे ड्रोन्स के हमले किए हैं, उसने उनको शायद मिसलीड किया है। वो हम तहम्मुल का बर्दाश्त का गुजारा कर रहे थे। मैं कल भी परसों भी जितने चैनल्स पे था, मुझसे लोग पूछ रहे कि पाकिस्तान कब करेगा, क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने कहा था कि ऐसे हमले पब्लिक इमोशन से नहीं ट्रिगर किए जाते, एक स्ट्रैटेजी के तहत ट्रिगर किए जाते हैं। अब आप देख लें, उसका जवाब यही था। और मैं अश्योर करा रहा था अपने नाजरीन को आपके तवज्जुह से कि देखिए आएगा रिस्पॉन्स, लेकिन सिर्फ ये हम बचपन या मोहल्ले की लड़ाई वाली नहीं कर रहे थे कि उसने मुझे मारा है तो आप उसको मारे जा। अब बचपन वाली लड़ाई नहीं थी ये लड़ाई। कमोडोर साहब, एयर कमोडोर साहब, हमें ब्रेकिंग न्यूज की जानिब जाना है, वापस आएंगे हम न्यूज के बाद, तो अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مختلف سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اہم خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مختلف سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل دیں گے PTV نیوز کی نمائندہ مریم ملک سے۔ مریم، آگاہ کیجیے گا، وزیر اعظم کا کن سیاسی رہنماؤں سے رابطہ ہوا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی موجودہ کشیدہ صورتحال اور بھارت کی حالیہ دہشت جہریت کے جواب میں پاکستان کے موقف پر اہم سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی، جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان، بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد حسین مکسی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری صالح حسین کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ الحمدللہ افواج پاکستان نے بھارتی جہریت کا مربوط اور پرزور جواب دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت نے نور خان ایئر بیس سمیت مختلف مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے جن میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی پے در پے جہریت کے باوجود پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تاہم بھارتی انکار کے بعد آپریشن بنیان مرفوظ کے تحت پاکستان نے جواباً صرف ان بھارتی عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے حملے کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت نے افواج پاکستان کے تدبر، حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا اور وزیر اعظم کو اس نازک مرحلے پر مکمل تعاون اور قومی یکجہتی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم کی ملک کے سیاسی قیادت سے رابطے ایک مضبوط اور متحد پاکستان کا پیغام دیتے ہیں جو ہر داخلی اور خارجی چیلنج کا سامنا یکجہتی سے کرنے کو تیار ہے۔ جی بہت شکریہ مریم ملک آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مختلف سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور افواج پاکستان کو شاندار خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہر دل پکار رہا ہے پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ جس طرح سے وطن کی حفاظت کی ہے، وطن کے خلاف ہونے والی جارحیت کا بدلہ لیا ہے، مسلح افواج نے بھارت کے غرور کو خاک پہ ملایا ہے، اس پر ہر دل خوش ہے، ہر سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ولید رسول صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، بھارت نے مس انفارمیشن کو ٹول کے طور پر استعمال کیا، ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں پولرائزیشن کے حوالے سے بھی بہت کوششیں کی انہوں نے، پھر پاکستان کو کمزور کرنے کا ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، لیکن ہمارے اتحاد نے، پاکستان کی مسلح افواج کی تیاری نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دے دی۔ پولیٹکس آف ہیٹریڈ میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں 35 فلمیں بنائی جن کا بیسک جو تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا۔ یہ آپ نے اگر اس وقت آپ کہیں گے کہ انڈیا کے پالیسی ساز اداروں کو یا اسٹریٹجسٹ کو کس نے مروایا تو میں کہوں گا میڈیا نے۔ میڈیا نے ایسی ڈس انفارمیشن پروائی کہ ان کو لگتا تھا کہ مودی زندہ باد کہے گا کہ اوپر پاکستان لیٹ جائے گا۔ وہ ایسا گودی میڈیا کو تو بھارت میں بھی بڑے تنقید کی جاتی ہے۔ ہاں، تو اب ایک تو وہ گودی میڈیا ہی سامنے آ بنا ہے نا، گودی میڈیا کی وجہ سے تو مر گئے نا۔ وہ گودی میڈیا غلط پورٹری نہیں کرتا تو یہ سارا کچھ ہونا نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز ہوئی ہے وہ آپ کی اس میں بھی آپ کے گودی میڈیا، پیڈ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے۔ تیسرا جو آپ میں میڈیا میں اچھل کے بڑھ کے مار رہی ہے، عملی میدان میں آن دا گراؤنڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ گراؤنڈ میں کچھ ریالٹیز
कुछ दूसरी होती है। तीसरा, मैं इसको कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कुछ चीज़ों को देखें, हर किसी की कोई पीछे से कॉन्टेक्स्ट है। आपने कश्मीरियों को पहले ये किया, फिर 5 अगस्त के बाद उनको डिस्टर्ब किया, फिर उनको कत्ल आम किया और उसको मसले को पिछले 75 साल से डिले किया, और ये रूटरी खुद बना दिया मोदी ने, क्योंकि हमने सारे पावर्स जो है ना वो यूटी को दिए और ये दिल्ली से हम कंट्रोल कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर हमने फतह किया, लेकिन ऐसा अमलन नहीं था। तीसरा ये है कि जब आप मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर आपको उसका भुगतना पड़ता है। खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। खालिद चीसी साहब, जुबिलेशंस हैं मकबूजा कश्मीर में जो भारत ने जिस पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, वहां के लोग खुश हैं, भारत में दीगर अक़लियतें खुश हैं। जो धूल चटाई है भारत की हुकूमत को, भारत जो जुल्म कर रहा है अपने ही मुल्क में अक़लियतों पर, खास तौर पर मुसलमानों पर, सिखों पर, सिखों ने तो ऐलान किया कि भारत की हुकूमत का भारत के अफवाज का साथ नहीं देंगे, बल्कि वो मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। जी, डॉक्टर साहब ने बड़ा सही कहा कि आप मीडिया से जंग नहीं जीत सकते, बॉलीवुड से जंग नहीं जीत सकते, फिल्में बनाने से लोगों को आप मोरल रेस तो कर सकते हैं, लेकिन आप फिर एक्सपेक्टेशन भी गलत डेवलप कर देते हैं। आप फिल्में बनाकर जो आप विलन होते हैं दुनिया की नजर में, उनको सुपर हीरो कर सकते हैं मेडल देके, लेकिन उनको स्किल नहीं दे सकते, आप उनकी रियल तैयारी नहीं करा सकते। फिर मैंने अक्सर चैनल्स पे यही अर्ज कर रहा हूँ, देखिए कोई भी फाइटर पायलट हो, सेलर हो, कोई जवान हो हमारा टैंक में, वो लड़ता अपने अवाम की सपोर्ट पर लड़ता है। जब मैं जहाज में टेक ऑफ करता हूँ एज ए पायलट फर्स्ट किया, तो मुझे पता होता है कि मेरे से तवक्कुआत कर रही है कौम, जिनको मैं कई हजार फुट पीछे या नीचे छोड़ कर आया। तो वो जो इंस्पिरेशन होती है वो सारी स्किल की, मोटिवेशन की, दुश्मन को मारने की या पहले हमला करने की या उसको मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की सारी मेरी इंस्पिरेशन वो लोग होते हैं जो मेरे परों के नीचे होते हैं। मैं खुद जाती तौर पे जब किसी पर हमला करता हूं तो उस पायलट से या उस जहाज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं होती। मेरी दुश्मनी होती है उन लोगों से जो मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। वहां पे ये मसला आ रहा है, मैं अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वहां पे ये मसला आ रहा है कि वहां लोग अपनी ही हुकूमत से नाला है, आजादी की तहरीकें चल रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है, आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी हुई है, कैटेगरीज कर दी हुई हैं कि ये किस कैटेगरी के शहरी हैं। सिखों में क्या है, सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है, वो समझ रहे हैं हमारी जितनी रेशो बनती है, हमारा जितना हकूक बनते हैं उतने नहीं दिए जा रहे, आवाज उठना शुरू हो गई है। कश्मीरियों को तो लेजिटिमेट हक है, सिखों ने तो अभी लिया है, कश्मीरियों से तो वादा किया हुआ है, सिखों से तो किसी ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे वादा नहीं किया था। यूनाइटेड नेशंस में केस हम तो नहीं लेकर गए थे, इंडिया लेकर गया था। तो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन की पास हुई दोनों मुल्कों पर लागू होनी चाहिए थी। तो ये एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो हैरान हूं कि किस मोरल में और किस मोटिवेशन से इंडियन फौज इस वक्त लड़ रही है, क्योंकि बैक एंड पे उनको डोमेस्टिकली अनएथिकल एक वॉर लड़नी पड़ रही है जो वॉर मॉन्गरिंग की कैटेगरी में जा रही है। जब वो लेफ्ट राइट अपने मुल्क के लोगों को, कंट्रीमैन को देखते हैं तो वो यूनाइटेड नहीं नजर आते, वो उस फौज को उस तरह सपोर्ट नहीं करते। ऊपर से उनके बजट रोके गए हुए हैं, उनके फाइटर जहाज नहीं उनको मिल रहे। फिर जब वो एयरबोर्न होते हैं तो पाकिस्तान के सोल्जर से भी मार पड़ी, उनको व्हाइट झंडे लहराने पड़ गए, और फाइटर जहाजों ने भी 72 जहाज आपने लेकर आए और 5 मलबे लेकर गए और बाकी मुश्किल से लैंड कर सके। पाक फिजाइया के एक जहाज को भी नहीं आप कुछ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एलिमेंट ऑफ प्राइड के साथ कह रहा हूं कि इस कौम को खुशियां देने वालों को भी सलाम करना चाहिए। तो ये एक डिस्पैरिटी है। जंग की कॉज जब तक क्लैरिटी नहीं लोगों में होगी और जब तक उनके लड़ने वालों के ज़हन में नहीं होगी कि मैं जस्टिफाइड जंग लड़ रहा हूं। मैंने अर्ज किया ना, जब मैं एक फाइटर पायलट हूं और मैं मिसाइल चलाता हूं तो मेरी सामने वाले से जाती दुश्मनी नहीं है कोई, मेरी मुल्क के साथ दुश्मनी है उसकी, जिसकी मैं उसको सजा देना चाहता हूँ। और मेरी मोटिवेशन डिपेंडेंट है लोगों के जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जब उनके लोग उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जब एक डिस्पैरिटी है, आपने देख लिया मीडिया उनका 900 चैनल में से बेशक 600 चैनल वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हो, लेकिन कुछ चैनल तो सेंस की भी बात कर रहे हैं जिनको ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ तो एंकर्स ऐसे हैं जिनका आपने नाम ले रहे हैं कि उनको कहा जाता है करण थापर को कि नहीं अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप तो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं या लॉजिक को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट वो जाति तो नहीं कर रहे, वो तो लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट हो जाती है। तो उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं।
कल उन्होंने एक वेंचर लिया, पाकिस्तान के एयरफोर्स बेसिस पे अटैक किया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मैं इन्हीं फैसिलिटीज को, साइबर कमांड को, इन्हीं J-10C के पायलट्स को चंद हफ्ते पहले जाती तौर पर मिल के आया हूँ, पूरा दिन गुजार कर आया हूँ। अभी मैंने 4 हफ्ते पहले डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है अपने यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे नहीं पता था कि आने के चंद दिनों बाद, यानी चंद दिनों बाद वही फाइटर पायलट हवा में पाकिस्तान की एक नई रिकॉर्ड कायम करेंगे, एक नया जो कहीं किताबों में हमने भी नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाया भी नहीं कभी। मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे, मैंने कभी नहीं ये पढ़ाया भी नहीं। हमारे वो तमाम फाइटर पायलट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के वो तमाम पायलट्स, हमारे मुसल्लह अफवाज के तमाम जवान जो अगले महाजों पर मौजूद हैं और वतन अजीज फा कर रहे हैं, हम सब उनको सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, उनकी हिफाजत की दुआ करते हैं, उनकी कामयाबी की दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप हमारे साथ रहे, और प्रोफेसर डॉक्टर वलीद रसूल साहब, आप भी स्टूडियोज़ में हमारे साथ रहे। हमारी ट्रांसमिशन जारी है। पाकिस्तान का ये अज़्म है और पाकिस्तान ने इस अज़्म का इरादा बारहा किया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं, अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन हमारे अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ होने वाली जारियत का भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भारत में सन्नाटा तारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग